The breakdown mechanism is contributed by excess electron hole pairs generated in the junction when the applied reverse bias is sufficiently high. तो जब reverse bias को आप बहुत high कर देते हैं, then excess electron hole pairs are generated, and this happens in lightly doped p-n junction diode. So ordinary जो diodes होते हैं lightly doped होते हैं, उनमें अगर reverse bias voltage आप बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उसके लिए वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा बायस को इंक्रीज करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कैरियर्स जनरेट हो जाते हैं. So the thermally generated minority carriers, they become more and more energetic with bias. तो जैसे जैसे बायस बढ़ाते जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है. These energetic electrons are capable of breaking the covalent bond. तो ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए केपेबल होते हैं? दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स. And one such electron creates a new electron hole pair, right? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे जनरेट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से. So these energetic electrons, they are capable. This process is cumulative in nature and it is called as avalanche multiplication. This process of secondary electron hole pair generation by energetic primary electron is also known as impact ionization. Impact होने से ionization होता है. Ionization दूसरे वाले में भी होता है, पर दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, वहां बम्बार्डमेंट की वजह से नहीं होता. This avalanche multiplication mechanism contributes huge number of electron hole pairs under a sufficiently high reverse bias. This sudden increase in the number of electron hole pairs results in drastic increase in the reverse current through the diode. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ब्रेकडाउन रीजन मतलब रिवर्स रीजन में ऑपरेट होगा डायोड, डायोड लाइटली डोप्ड होगा, और रिवर्स बायस की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब ये अवेलांच ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म आपका होगा. नेक्स्ट इज द जीनर ब्रेकडाउन. जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म occurs in a heavily doped p-n junction by excess carrier generation due to direct rupture of the covalent bonds. इसमें डायरेक्ट रप्चर होता है, किसी ने उसको एड नहीं किया होता, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की होती. इफ द इलेक्ट्रॉन इज सिटिंग एट सम प्लेस, तो वो अपने प्लेस पे बैठा बैठा ही अपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रप्चर कर सकता है. उसको दूसरे आदमी की हेल्प की जरूरत नहीं है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है कि उसी से उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं. So this heavily doped p-n junction exerts a sufficiently strong force on a bound electron and it is torn out of the covalent bond. The field intensity across the p-n junction increases with increase in impurity concentration for a fixed applied voltage. तो आपकी अगर अप्लाइड वोल्टेज फिक्स है तो आपकी फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आपकी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ p-n junction is exploited by choosing proper impurity concentration in achieving the breakdown condition. तो इसी प्रॉपर्टी को की इम्प्योरिटी बढ़ाने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. इसी प्रॉपर्टी को, इसी बिहेवियर को एक्सप्लॉइट किया जाता है किस चीज के लिए? डिवाइस बनाने के लिए. कौन सी डिवाइस बनाने के लिए? जीनर डायोड एज रेगुलेटर. तो एक पर्टिकुलर इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को चूज किया जाता है, एक पर्टिकुलर डोपिंग को चूज किया जाता है. डोपिंग का क्या मतलब है? इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, इतनी इंप्योरिटी आप उसमें डालेंगे. तो by choosing the proper impurity concentration we can achieve the high electric field intensities. It is found that linear breakdown occurs
at a field intensity of approximately 2 into 10 raised to power 7 volts per meter. ये वैल्यू आपको लर्न करनी है that at this high value approximately of 10 raised to power 7 volts per meter and with a reverse bias of 4 volts, this occurs at a field approximately of this intensity. Now, this high electric field can be reached at a voltage below 6 volts for heavily doped diodes. तो अगर impurity concentration काफी ज्यादा है, डायोड काफी heavily doped है, तो 6 वोल्ट से कम पे ही आपको ये फील्ड मिल जाता है. For a junction with a reverse bias of 4 volt, अगर एक जंक्शन पे आपने 4 वोल्ट का रिवर्स बायस लगाया है और उसकी विड्थ 100 एंगस्ट्रॉम है, तो उसके लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 4 by 100 into 10⁻10 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया, so comes out as 4 into 10 raised to power 8 volts per meter. More than the critical value required for Zener breakdown to start. अभी हमने देखा था कि Zener breakdown को स्टार्ट करने के लिए इसका क्या मतलब है कि Zener डायोड रेगुलेटर की तरह काम करे ब्रेकडाउन रीजन में. तो ब्रेकडाउन रीजन में अगर उसको रेगुलेटर की तरह काम कराना है आपको, तो आपने देखा कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट उसको पास करना पड़ेगा, तभी वो रेगुलेटर की तरह काम करेगा. उसके लिए जो लाइन रेगुलेशन हमने किया था कि इनपुट वोल्टेज है एक मिनिमम वैल्यू से आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी जाके Zener डायोड आपका रेगुलेटर की तरह बिहेव करेगा. So this is the difference between avalanche and the Zener breakdown. avalanche breakdown जो होता है, पहली बात बहुत heavily doped पे नहीं होता, lightly doped पे होता है. Second requirement is that due to bombardment of one electron with the other, secondary electrons are produced, covalent bonds are broken. And in the Zener effect, the diodes are heavily doped and the high fields are created. So at much lower reverse voltages, the electric fields are sufficient to break the covalent bonds. So in both the cases, the covalent bonds are broken, electron hole pairs are generated. In one case, it is due to the assistance of the other electrons, and in the second case, independently for each electron, the bonds are broken due to the electric field. Okay? कोई और शेयर करना चाहेगा? ठीक है. IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेकडाउन डायोड्स कल भी हमने डिस्कस की थी, आज हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इनको कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स avalanche ब्रेकडाउन और Zener ब्रेकडाउन में क्या फर्क दिखती हैं. See the figure on the left hand side. The IV characteristics of Zener and avalanche diode is depicted in figure 33.47a. The forward characteristics is same as that of basic PN junction diode. जंक्शन डायोड जो नॉर्मल होता है उसकी भी ऐसी एक्सपोनेंशियली राइज होता है, डायोड इक्वेशन को फॉलो करते हैं. अब आ जाओ रिवर्स रीजन पे. देख के ही पता चल रहा है कि जो avalanche breakdown है, it requires higher reverse voltage, whereas Zener breakdown requires lower reverse voltage. So, for the same power rating, a Zener diode can withstand high current flow. तो अगर सेम पावर रेटिंग का है, एक Zener डायोड को दें हेविली डोप्ड डायोड को और एक लाइटली डोप्ड डायोड में से करंट पास करें, तो जो हाईली डोप्ड होगा इट कैन विथस्टैंड हाई करंट फ्लो बिकॉज ऑफ लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस. उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होती है, देख सकते हैं फिगर में. ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे रीड करते हैं? नी पे आके, जब कर्व जो थोड़ा सा टर्न ले रहा होता है, जब वो नी पे पहुंचता है उसके बाद से जब ऑनसेट होता है करंट का, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन, स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेकडाउन रीजन. सो Zener diode is a better choice for voltage regulator.
See the figure on the right hand side. Figure 3.47 indicates various possible operating points. Point A, क्या है point A? देखें, ये वाला point जहां से ऑनसेट मानते हैं. ऑनसेट कहां से दिखाते हैं? जो ये पोर्शन रिवर्स बायस का आता है, जब ये स्टार्ट हो जाता है वर्टिकल होना, उसको एक्सटेंड कर दो पीछे. दैट पॉइंट इज पॉइंट ए. It indicates the onset of Zener breakdown. Current at this point is minimum Zener current required for the breakdown to start. अगर ब्रेकडाउन होना है तो आपको इतना करंट पास करना ही करना पड़ेगा Zener डायोड के सर्किट में से. अगर आपने इससे कम करंट पास किया तो आपका Zener इस रीजन में आएगा ही नहीं. The current is known as Zener knee current also. कल भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये. And it is indicated by IZK, which is nothing but IZ minimum, knee current or the minimum Zener current. Point B. Go back and see what is point B. The middle point is point B, IZT. It is denoted by IZT. See the figure. It is called as Zener test current. This indicates a test point within the allowable region from A to C. ये देखो पूरा रीजन A to C है, ये वर्टिकल है ऑलमोस्ट, ये ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है. तो A to C के बीच में एक पॉइंट चूज किया है which is the test point. This is IZT. The current at this point is IZT. The IZT lies between IZ minimum and IZ max. बीच में है इस करंट की वैल्यू, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है. The voltage across the Zener diode is very close to VZ. इन तीनों पॉइंट्स पे if you want to see the Zener voltage is approximately VZ. The characteristics are almost vertical. This particular principle provides voltage regulation in Zener diode. So what is the principle behind the Zener regulation? That IZ can vary from IZ min to IZ max. Still, the voltage around the Zener will remain around VZ. Around VZ. अगर VZ रहेगी तो बिल्कुल आइडियल केस हो जाएगा, बट इसके क्लोज रहती है. That is the practical Zener diode. Come to the point C, the last point. The lowermost point denoted by IZ max. Maximum Zener current. This is the farthest operating point from the onset point A. A point से तो करंट स्टार्ट हुआ था, उससे सबसे दूर पॉइंट ये है. At this point, the current through the Zener reaches the maximum limit, which is called as IZ max. Operation beyond this point will cause the Zener diode to be permanently damaged. अगर आपने इससे बियॉन्ड कर दिया Zener डायोड में करंट, तो Zener डायोड की रेटिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो डैमेज हो जाएगा. तो एक डेटा इन्होंने शेयर किया हुआ है. फॉर अ Zener डायोड रेटेड एट दिस, द Zener कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम करंट ऑफ 106 milliamperes. So this is the characteristics in the reverse region and the difference between the characteristics of avalanche region and the Zener region. VZ जो है एक रेंज में है, मतलब VZ के लेफ्ट पे भी थोड़ी सी रेंज है और राइट पे भी है, although it is a narrow range. ठीक है. और अगर ये एक आइडियल डायोड होता, Zener डायोड होता है, तो ये तीनों पॉइंट्स एग्जैक्टली एक ही वोल्टेज पे लाई कर रहे होते. अब पॉइंट बी की वोल्टेज पॉइंट ए से वेरी स्लाइटली डिफरेंट है, ऐसे ही पॉइंट सी की. Okay, so if you see the IV characteristics, so it varies from IZ min to IZ max. Reverse current increases with voltage remaining almost constant. Characteristics, they are not exactly vertical, and the diode exhibits a small resistance denoted by RZ. कैसे पता चल रहा है इसमें रेजिस्टेंस है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एग्जैक्टली वर्टिकल ना होके एक
रजिस्टर की आपने देखी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती हैं, उसमें एक स्लोप आता है. So this indicates that a Zener diode consists of a battery which has the potential Vz and a small dynamic resistance Rz, which can be calculated from the slope of the Zener characteristics. See the figure में इन्होंने डेल्टा V लिया हुआ है, डेल्टा I लिया हुआ है. अगर आइडियल होता तो ये डेल्टा V नहीं होता. ठीक है, डेल्टा I तो होता पर डेल्टा V नहीं होता. Slope of this is 1 by R. So they are sharing the Zener diode equivalent circuit. Equivalent circuit का क्या मतलब होता है कि अगर इसको इंटरनली देखा जाए तो ये है क्या एक्चुअल में Zener diode. It is a battery with a small resistance. Okay? तो A पार्ट में Zener diode है, B पार्ट में इक्विवेलेंट सर्किट है और C पार्ट में अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है. क्यों? क्योंकि डायनामिक रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. So you can replace it by a battery only. Okay. Next is the voltage regulation part, which is the B part of your practical also. So a voltage regulator is capable of providing a constant output voltage across a load resistance, even if there is a change in input voltage to the circuit or the load resistance, causing the change in the output current through the load resistance. अब ध्यान से समझो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का क्या मतलब होता है. इतना तो सभी बच्चे लिख देंगे कि इट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. ये तो सभी बच्चे लिख देते हैं. बट इंपॉर्टेंट चीज लिखने की ये भी है कि अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इवन इफ फर्स्टली देयर इज अ चेंज इन इनपुट वोल्टेज, सेकेंडली देयर इज अ चेंज इन द लोड रेजिस्टेंस व्हिच कॉजेज द चेंज इन द आउटपुट करंट थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो आउटपुट करंट भी चेंज होगा. तो मतलब क्या है कि इनपुट को चेंज करने से भी चेंज नहीं होनी चाहिए वो वोल्टेज, और लोड रेजिस्टेंस को चेंज करने से भी नहीं चेंज होनी चाहिए. तो यही क्वेश्चन अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि कोई भी सर्किट को अगर आप यूज करते हो तो लोड लगाते हो. ठीक है, तो आप चाहते हो लोड कुछ भी हो एक्सटर्नल, आपकी जो डिवाइस है वो कांस्टेंट वोल्टेज ही दे. फिर कई बार क्या होता है इनपुट से सप्लाई आ रही होती है, उसमें बहुत वेरिएशन होता है. तो आप ये भी चाहते हैं कि इनपुट में जो भी वेरिएशन हो उसके बावजूद भी आपको जो जीनर आउटपुट है वो कांस्टेंट मिले. A practical voltage regulator can perform this operation within a certain limit of change in input voltage. तो आइडियल तो एग्जिस्ट करता नहीं. प्रैक्टिकल केस क्या होता है कि एक पूरी रेंज में तो नहीं वो कांस्टेंट आउटपुट देता, बट एक पर्टिकुलर चेंज करने से इनपुट वोल्टेज का एक रेंज में, और एक रेंज में लोड रेजिस्टेंस को चेंज करने से वो आपका रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. जैसे प्रैक्टिकली भी हमने देखा था कि जब हमने लो इनपुट लगाई तब रेगुलेशन नहीं थी, बट एक VI के बाद रेगुलेशन आपको दिखाई दे रही थी, वोल्टेज कांस्टेंट थी. ऐसे ही RL भी हमने स्टडी किया था कि फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ RL इट वाज नॉट शोइंग द Zener voltage across the output, but after a certain value of RL the voltage was remaining constant. So the capacity of the circuit of providing a constant output voltage, number one, the change in input voltage which is called as line regulation. Number two, change in load resistance or load current. एक ही बात है, called as load. तो ये नहीं बोलना कि रेगुलेटर आपका ऐसा है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है. आपको ये बोलता है कि रेगुलेटर it should be able to provide a constant voltage irrespective of the change in input voltage and the change in load resistance or load current. Okay. When operating in the breakdown region, the voltage across the Zener diode remains almost same irrespective of the amount of current passing through it. This particular characteristics of Zener diode is utilized in designing the regulator circuit. Figure shows the circuit diagram of a voltage regulator. 50 का A देखो, ये regulator का
डायग्राम है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमने आर नहीं लगाया था, पर रेगुलेशन के लिए हम एक इनपुट रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक लोड लगाते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए लगाते हैं कि इनपुट लाइन में भी कोई वेरिएशन हो या लोड करंट में कोई वेरिएशन हो, हमारी आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहे। The circuit should be capable of providing a constant output voltage against the possible change in input voltage or load resistance within a certain limit. एक लिमिट में करता है काम, पूरी अगर आप सोचो इनफाइनाइट लिमिट्स में करेगा तो नहीं पॉसिबल है। डिजाइन स्टेप्स। Number 1, input voltage must be greater than Vz to ensure the operation of Zener diode. अगर आप चाहते हो Zener diode के क्रॉस Vz हो तो इनपुट वोल्टेज को उससे ज्यादा रखो। It should not be very high to operate the Zener beyond its power rating. Next point, for a fixed VI, अगर VI को आपने फिक्स कर दिया, RL must be high, sufficiently high to make the Zener on. अगर RL को आपने हाई नहीं रखा तो क्या होगा? अगर मान लो आपने लो रखा तो ज्यादा करंट RL से पास हो जाएगा, ज्यादा करंट पास हो गया RL से तो जीनर ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक से देखा कि जीनर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए ऑन होने के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं तो स्टॉप हो जाएगा एज द करंट पासिंग थ्रू जीनर इज 0। तो देखो ये वाली फिगर देखो, इसमें क्या है, जीनर जो डायोड था वो हटा दिया और ओपन सर्किट कर दिया है यहां से। इस इधर देखो, पहले ये वाला फिगर भी देखो। Equivalent circuit when the circuit zener is not turned on and it is turned on. तो दो सर्किट्स बनाए हैं, एक में जीनर टर्न ऑन ही नहीं हुआ है। ऑन ही नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट गया ही नहीं है। और सी पार्ट में क्या है कि जीनर पिक्चर में आ रहा है क्योंकि आपने एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को पास कर दिया है। तो क्या फर्क होता है, लोड रेजिस्टेंस अगर उधर ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो करंट कम ले पास कर जाएगा और जीनर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट ऑपरेट करने के लिए नहीं मिले। तो VL की अगर वैल्यू देखें, व्हाट इज VL एक्चुअली, द लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगाओ, दो रेजिस्टेंसेस है R और RL और निकालना RL के अक्रॉस है, तो VL इक्वल टू RL इंटू VI, द इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। सो दिस इज VL. It is important to use a sufficiently high RL. If RL is such that the output voltage जो VL के across voltage है is greater than and equal to VZ, या तो VZ है या VZ से ज्यादा है, then the Zener diode is on and the equivalent circuit of the regulator is as shown in figure B. But note that now since the Zener is on, the load voltage VL equal to VZ is not given by the above equation. ये छोड़ दो अभी, ये वाला पॉइंट देखो, minimum RL is required for taking the Zener in its on state and can be obtained by substituting VL equal to VZ. तो VL की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो आपको क्या चाहिए, VL इक्वल टू VZ करने के लिए एक मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो RL को रिप्लेस कर दिया RL मिनिमम से, सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट RL मिनिमम। फॉर RL ग्रेटर देन RL मिनिमम व्हाट हैपेंस, अगर RL मिनिमम से ज्यादा है व्हाट हैपेंस, ये छोड़ दो। Now come to this point, load regulation. Load regulation में what do? We fix VI and we vary RL. RL को vary करा और VI को fix किया. Here the load resistance must be high enough to turn the Zener in the on condition.
The minimum load resistance to ensure this we have calculated is this. For RL less than this, the circuit cannot provide a regulated voltage. ये आपको याद रखना है कि अगर RL मिनिमम से कम है तो रेगुलेशन आपकी नहीं होगी. It will behave like a simple voltage divider circuit. बीच वाला तो ऑन ही नहीं होगा तो इसका मतलब वो है ही नहीं जैसे. तो दो रेजिस्टेंस रह जाएंगी, एक सीरीज वाला और एक आउटपुट वाला RL. फॉर RL ग्रेटर देन RL मिनिमम, अगर ज्यादा है तो भी जीनर ऑन रहता है एंड द आउटपुट इज अगेन VL इक्वल टू VZ इज constant. Now the two currents are there, IZ current and the IL current. This is the total current which is coming from the source. So IZ plus IL load current plus zener current equal to IR, the current through the R. So they are taking the delta of these. Delta IR कितना होगा? Delta IZ plus delta IL. If delta IR is equal to 0, then what happens? Next is the line regulation. In the line regulation, what happens? RL को आप फिक्स करेंगे और वेरी करेंगे VI को. तो मॉर्निंग में कोई बच्चा पूछ रहा था रियोस्टैट का, तो इस तरह का सिंबल होता है जो लेफ्ट पे आपको दिख रहा है 3.54 के. स्लांटिंग लाइन लगा दो, इसका मतलब आपने इस वोल्टेज को वेरी किया है. ठीक है, वो रियोस्टैट लगा के किया है या किसी और ढंग से किया है. So for a fixed RL and a variable input voltage, VI must be sufficiently large to ensure the zener is turned on. ये हमने डिस्कस किया है, अगर कम इनपुट लगाओगे आपके तो ऑन ही नहीं होगा. So the minimum value is determined by VL equal to VZ. इसको स्टार्ट करने के लिए कितनी मिनिमम वैल्यू की जरूरत है? इट इज इक्वल टू RL into VL minimum divided by RL plus R. तो टोटल कितनी मिनिमम वोल्टेज होनी चाहिए? तो हमको क्या चाहिए? VL equal to VZ. इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आप देखोगे तो वो कितनी होगी? RL into मिनिमम VI मिनिमम के लिए VI MIN लिख दिया. So this would be this. तो अगर इनपुट वोल्टेज आपकी मिनिमम से ज्यादा है देन इट विल बिहेव लाइक अ रेगुलेटर, और इससे कम है तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ रेगुलेटर. तो ये प्रैक्टिकल के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से आपका जेनर डायोड में इतना ही है. अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है देखो. अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, अगर ये ऑफलाइन होता तो हम जेनर डायोड आपसे परफॉर्म करा के देखते और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते कि नी वोल्टेज क्या होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, अवेलांच और जेनर में क्या डिफरेंस होता है, मिनिमम करंट क्यों चाहिए, RL मिनिमम क्यों चाहिए, जेनर डायोड टर्न ऑन होता है उसका क्या मतलब है, तो ये सब पूछते. ठीक है. अब असाइनमेंट आपकी जो फाइनल असाइनमेंट बनेगी तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है तो. और थ्योरी पार्ट में कैसे आता है? थ्योरी पार्ट में कोई भी डेरिवेशन आ सकती है इसकी, RL में की आ सकती है, VL की आ सकती है, सर्किट आ सकता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं. और क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आता है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ RL min, कैलकुलेशन ऑफ VI min, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ VZ एक्सेट्रा. तो आपको जिस भी बुक से न्यूमेरिकल्स मिले आप इस पे न्यूमेरिकल्स कर लीजिए. जेनर पे काफी न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं बुक्स में.